Hello everyone. Today I'll be talking about permanent tissue, their structure and their role. आज हम permanent tissue के बारे में बात करेंगे कि permanent tissue का प्लांट के अंदर क्या रोल होता है और permanent tissue का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. Permanent tissue is formed by the division and differentiation of meristematic cells. This we know very well that plants are made up of cells, and those cells are categorized into two categories, meristematic cell as well as the permanent cell. So the meristematic cells are what? Meristematic cells are those which formed in the area जहाँ पर कि प्लांट बिल्कुल नया नया अभी डेवलप हुआ है, प्लांट अपने आप को डिवाइड कर रहा है. यंगर एरियाज़ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो फटाफट अपने आप को डिवाइड कर सकती हैं. दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, वेयर इज द permanent tissue lost the power of division. That's why we call them permanent tissue. But under certain conditions, these permanent cells or tissue may also divide. Now, the permanent tissues can be categorized into three categories: simple tissue, complex tissue and secretory tissue. As the name itself describes, that simple tissue means the tissue which is made up of only one type of cells. Complex tissue which is composed of different kinds of cells. Secretory tissue that is composed of special types of glands or cells which are secretory cells, gums and resins. Now, simple tissue is again divided into three categories: parenchyma, collenchyma as well as sclerenchyma. And sclerenchyma is further divided into fibers and sclerates. Now, complex tissue is divided into two parts: xylem as well as phloem, and then xylem is divided into five categories or five parts: tracheids, vessels, xylem fiber, xylem parenchyma as well as transverse cell. Phloem is again divided into five categories: sieve elements, companion cell, phloem fiber, phloem parenchyma as well as transverse cell. And now the secretory tissue is divided into two categories: external secretory tissue and internal secretory tissue. That means जो प्लांट के अंदर एक्सटर्नल पार्ट्स के ऊपर secretory gland प्रेजेंट होती हैं वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आएंगी, एंड जो इंटरनली प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स वो प्लांट के इंटरनल secretory. Now, what is simple tissue? So, simple tissue in which the cells are essentially alike or same, we called it simple tissue. वह टिश्यू जिसके अंदर सेल्स जो होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं. सिंपल टिश्यू वापस से तीन तरीके की सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है: पेरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. Now, what is parenchyma? Parenchyma is the most basic type of differentiated cell. When we are talking about the development of cells from meristematic cell to permanent cell, so in permanent cell, parenchyma is the primitive one, the initial one, the first differentiated cells. It forms the framework of all plant organs and occurs in cortical areas, pericycle of the stem, mesophyll of leaves, pulp of fruits, pith, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेन्काइमा होता है वो प्लांट के सभी ऑर्गन्स के अंदर, चाहे वो कॉर्टेक्स हो, चाहे वो पिथ हो, पेरिसाइकल हो, स्टेम हो, रूट हो, मीजोफिल हो, सभी जगह पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. पेरेन्काइमा सेल्स आर ऑल्सो the component of some complex tissue such as xylem, phloem and medullary rays. पेरेन्काइमा जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जिसमें हम जाइलम की, फ्लोएम की या फिर मेड्यूलरी रेस की बात करेंगे. पेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज आइसोडायमेट्रिक बट वेरी इन फॉर्म्स. जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली दैट इज़ आइसोडायमेट्रिक. आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि लिटिल बिट वो थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, पर कभी कभी इनका जो शेप है वो वेरी भी कर जाता है.
दे आर मोर और लेस स्फेरिकल इन आइसोलेशन, और जब आप इन्हें रिमूव करते हैं दैट मीन्स जब आप सिंगल सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं दैट टाइम दे लुक लाइक अ स्फेरिकल और अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. दे आर जनरली पॉलीहेड्रल इन क्लोजली पैक्ड टिश्यू ड्यू टू प्रेशर सरफेस टेंशन ऑफ नेबरिंग सेल. और जब प्लांट्स के अंदर ऑर्गन के अंदर हम पैरेन्काइमेटस सेल्स की प्रेजेंस की बात करते हैं तब उनका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीहेड्रल मतलब बहुत सारे हेक्सागन या हेप्टागन या ऑक्टागन की फॉर्म में पॉलीहेड्रल शेप में दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे सेल्स से घिरा हुआ रहता है, प्रेशर रहता है उसके ऊपर, सरफेस टेंशन रहती है, उस वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको नेबरिंग सेल्स की वजह से एक पर्टिकुलर शेप के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स जो हैं वो दिखाई देती हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर इनिशियल 2 डायग्राम्स आर शोइंग द पैरेन्काइमेटस सेल्स. जो इसमें आपने देखा फर्स्ट वाले के अंदर सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी लिटिल बिट राउंड हैं, स्फेरिकल इन शेप हैं, बट इन सेकेंड वन जो सेल्स हैं वो प्रेशर की वजह से एक दूसरे को वो प्रेशराइज कर रही हैं, दबा रही हैं, तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन सेल जो है वो आपको थोड़ी सी पॉलीहेड्रल शेप की दिखाई दे रही है. एंड द थर्ड कैटेगरी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सेल वॉल है प्राइमरी वॉल जो है उसके ऊपर थोड़ी सी थिकनिंग दिख रही है, जिस वजह से आपके जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो थोड़ी मोटी दिखाई दे रही हैं, थिक दिखाई दे रही हैं. Parenchyma cells are living when functional and are engaged in many activities such as photosynthesis, respiration, secretion and storage of food material. Parenchymatous cells जो होती हैं बेटा वो जब लिविंग होंगी तो फंक्शनल होती हैं और प्लांट्स के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उन सभी को पूरा करने के लिए पैरेन्काइमेटस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल. उसमें हम बात कर सकते हैं चाहे वो फोटोसिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है, सिक्रीशन है, फूड का स्टोरेज है, एवरीवेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्लेइंग देयर रोल. They are characterized by the presence of intercellular spaces which develop either cytogeneously और less frequently lysogeneously. और जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है एज यू कैन सी इन द अर्लियर डायग्राम कि उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. एंड वो किस तरीके से डेवलप होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, साइजोजीनियसली या लाइसोजीनियसली. ये दो टर्म हम बात कर रहे हैं. साइजोजीनियसली का मतलब होता है जब सेल्स जो हैं वो प्रेशराइज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं, तो उस वजह से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वहाँ पर आ जाते हैं. बट लाइसोजीनियसली के अंदर हम बात करते हैं जब सेल्स जो हैं वो अपने आप को मिडिल लैमेला के थ्रू डिवाइड कर लेती हैं, अपने आप डिवाइड होकर दो पार्ट्स के अंदर अपने आप को दिखाने लगती हैं, तो हम बात करते हैं दैट इज़ द लाइसोजीनियसली कंडीशन. और उस कंडीशन में भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वहाँ पर वो बन जाते हैं, दिखाई देते हैं. There is maximum development of intercellular spaces in aquatic plant where they form a connected system throughout the entire plant, and such kind of tissues, parenchymatous tissues in the uh, hydrophytic plants we call them aerenchyma, which helps in circulation of air and also provide buoyancy to plants. हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उस इंटरसेल्यूलर स्पेस की वजह से जो पूरा प्लांट है पूरी सारी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं. उन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की वजह से हम उस पैरेन्काइमेटस सेल्स को या पैरेन्काइमेटस टिश्यू को एरेनकाइमा कहते हैं, जो कि एयर की सर्कुलेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है एज वेल एज जब टिश्यू के अंदर बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है और उसमें काफ़ी सारी एयर भरी हुई है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो उस प्लांट को, उस ऑर्गन को लाइट वेट बनाएगा, बुयांसी देगा. इसी वजह से जो आपके हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं दोज आर फ्लोटेड ऑन वाटर, ईजिली वो पानी के ऊपर तैर पाते हैं बिकॉज उनके जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर एयर भरा हुआ होता है. एंड वी कॉल्ड सच काइंड ऑफ पैरेन्काइमेटस cells or tissue in aquatic plant is aerenchyma. Aerenchyma. Sometimes parenchymatous cells are tightly packed and they are devoid of any intercellular spaces as in the endosperm of the seeds. हमने अभी अभी बात किया था कि parenchymatous cells are everywhere if they are living. तो एंडोस्पर्म के अंदर, सीड के एंडोस्पर्म के अंदर भी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं दोज आर ऑल्सो द parenchymatous cells. But here there is no intercellular spaces between the cells
सेल्स जो हैं वो इतना टाइटली पैक्ड होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ कि वो पूरा उस एंडोस्पर्म को फॉर्म कर देती हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के अंदर दीज आर द डायग्राम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कैना का डायग्राम है ये सेकंड वाला, जिसमें आप देख सकते हो कि सेल्स के बीच बीच में काफ़ी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। और फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो बीच बीच में काफ़ी बड़ा बड़ा इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ये पिट्यूल है और वहाँ पर एयर फिल होता है और इस एयर की वजह से ये प्लांट्स जो हैं वो लाइटर इन वेट हो जाते हैं। Parenchymatous cells have relatively thin primary cell wall that is composed of cellulose और calcium pactate। ये हमने बात किया था कि जो plant cells होती हैं that is made up of cellulose, जो cell wall होता है वो cellulose का और calcium pactate का बना हुआ होता है। तो permanent cells जो होती हैं वो बहुत पतली primary wall cell wall से मिलकर बनी होती हैं। The middle lamella is distinguished in some and indistinguished in others and plasmodesmata are commonly present। और आपको पता है कि दो सेल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती हैं तो उनके बीच में एक कॉमन एरिया कॉमन वॉल होता है जिसको अपन प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जैसे यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं सेंटर में देयर इज इंटरसेल्यूलर स्पेस मेंशन हो रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा है इन प्राइमरी पिट फील्ड, देन वी हैव अ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। पतला सा प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल जो है वो मिडिल लैमेला से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है और आपका यहाँ पर बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहा है मिडिल लैमेला पोर्शन। In some cases, storage parenchyma such as endosperm of Coffea arabica and Phoenix dactylifera, the primary wall become very thick। कुछ केसेस के अंदर जैसे कि अगर अपन कॉफिया अरेबिका की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी वॉल होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। हेयर द थिकनिंग द प्राइमरी वॉल बहुत मोटा ब्लैक कलर का बोल्ड बहुत लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, दिस इज़ वॉट थिक प्राइमरी वॉल। Sometimes parenchymatous cells have thick and lignified secondary wall as in the secondary xylem and pith। और कई बार जो parenchymatous cells होती हैं वो लिग्निफाई हो जाती हैं, उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है और उस डिपोजिशन की वजह से सेल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा थिक दिखाई देती हैं। Parenchymatous cells which contain numerous chloroplasts and engaged in photosynthesis are termed as chlorenchyma और assimilatory parenchyma। जैसा हमने पहले भी बात किया था कि if parenchymatous cells are alive, they are responsible or they are actively participating in all the metabolic activity। So photosynthesis जो है वो भी एक बहुत important metabolic activity है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए सेल्स के पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होना ज़रूरी है। तो वो पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्लोरेनकाइमा या फिर एसिमिलेटरी पेरेन्काइमा कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन लीफ मेसोफिल एंड इन द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स। ये जनरली लीफ मेसोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर जो यंग स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, आपको पता है, तो उसके भी आउटर कॉर्टिकल एरिया के अंदर आपकी क्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। Parenchyma of non-green part of the plant contain plastid other than chloroplast। और जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है प्लांट का, वहाँ पर जो आपका क्लोरोप्लास्ट की बजाय प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, उस वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई नहीं देता। इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में, ए डायग्राम के अंदर इट इज़ अ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और उसके अंदर पूरे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर आप देखेंगे पूरा साइड साइड में गोल 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 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड डायग्राम इज व्हाट पैलिसेड पेरेन्काइमा। सेक्शन कटेंगे ये पैलिसेड का क्योंकि जो पैलिसेड टिश्यू होता है वो इलॉन्गेटेड होता है, बट यहाँ पर आपको गोल दिख रहा है। सो दिस इज़ द टीएस ऑफ पैलिसेड टिश्यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड्स में हर एक सेल के पूरे पूरे साइड्स में मार्जिन पर आपको ग्रीन कलर राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर के राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। Sometimes parenchymatous cell become elongated, pointed and slightly thick walled to provide mechanical support and they are prosenchyma। Generally mechanical support का जो काम होता है बेटा वो कॉलिनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा करता है, जो पेरेन्काइमा के एडवांस फॉर्म है। बट कभी कभी आपका पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो भी इलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली पॉइंटेड हो जाता है, थिक वॉल हो जाता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है। वी कॉल देम प्रोजेन्काइमा।
इन सक्यूलेंट्स जैसे कि अगैव हो गया, आपका एलोवेरा हो गया, ओपनशिया नागफनी हो गया, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो लिटिल बिट मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस, वाटर स्टोरेज के लिए, क्योंकि दीज आर व्हाट द जीरोफिटिक प्लांट्स। और जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर स्टोरेज है दैट इज़ ऑल्सो इन द परमानेंट in the parenchymatous tissue. These cells are often arranged in a row or elongated like palisade cells. ये cells जो हैं वो या तो रो के अंदर प्रेजेंट होती हैं या थोड़ी सी elongated हो जाती हैं. They have a thin layer of partial cytoplasm, a nucleus and a large vacuole with water or mucilage content. और इनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल पतला पतला साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत कम अमाउंट में और एकदम पेरिफेरी के ऊपर, पार्शियल एरिया के ऊपर होता है, पेराइटल एरिया के ऊपर होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेंटर में बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर वाटरी म्यूसिलेजिनस कंटेंट जो है वो फिल होता है. एंड दिस म्यूसिलेजेस इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सेल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर. और ये जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज का फीचर क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, एब्जॉर्ब वाटर. तो ये जो म्यूसिलेज है ये पानी को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है. Storage parenchyma contain various reserve material which are dissolved in the vacuolar sap or in the form of solid fluid bodies occurring in the cytoplasm. और जब हम स्टोरेज पैरेनकाइमा की बात करेंगे तो स्टोरेज पैरेनकाइमा का क्या फंक्शन है कि वॉट एवर द प्लांट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है प्लांट का जिसे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको जब प्लांट प्रिजर्व करके रखता है तो उसको जो वैक्यूलर सेप है उसके अंदर डिजॉल्व करके प्लांट साइटोप्लाज्म के अंदर उसको रख लेता है. शुगर हो गए, एमाइड्स हो गए, बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज हो गए जो सेल सेप के अंदर डिजॉल्व कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. स्टार्च ग्रेन्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट अकर एज डिस्क्रीट बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के अंदर कई बार स्टार्च भी, के स्टार्च, ऑयल, दीज आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर और सेल सेप, तो ये आपको ग्रेन्यूलर फॉर्म के अंदर डिस्क्रीट, रैंडमली ऐसे बिखरे हुए डिस्क्रीट बॉडी की फॉर्म में दिखाई देते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द स्टोरेज पैरेनकाइमा ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ राई का ये है. और इसमें आपको जो सेंटर के अंदर जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े इलॉन्गेटेड, दोज आर व्हाट द स्टार्च ग्रेन्स. As parenchymatous cells have living protoplast, they retain meristematic activity even at maturity. और parenchymatous cells जो हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका प्रोटोप्लास्ट लिविंग है, तो ये जिस तरीके से हमने बात किया था कि सिंपल टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर कैपेबिलिटी होता है डिवीजन का, उसी तरीके से पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर भी क्योंकि लिविंग प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दे कैन ऑल्सो डिवाइड मेच्योरिटी लेवल पर भी. दस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वुंड रिकवरी एंड रीजनरेशन. तो इसलिए जब भी प्लांट के अंदर कोई इंजरी होगी, वुंड होगा, रीजनरेशन वाला पार्ट होगा, तो पैरेनकाइमेटस सेल्स परमानेंट टिश्यू के अंदर भी आप देखिए पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं दे कैन डिवाइड एंड उस वुंड को या जो भी इंजरी है उसको ईजिली रिकवर कर सकती हैं. दे ऑल्सो गिव राइज टू कॉर्क कैम्बियम, वो कॉर्क कैम्बियम बना रही हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना रही हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो दूसरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनको बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. थैंक यू. आई होप आज हमने परमानेंट टिश्यू का सिंपल टिश्यू जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में बात की थी, इसके दो और पार्ट हैं, कॉलिनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो कि हम आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.